Good morning, my dear students. Today, we will discuss the very first chapter of Geography from 10th standard, that is the resources and development. Most of the 10th class students are aware about this concept because we have already discussed this concept in the 10th standard. But the student of the 9th standard are unaware about this concept. So, the student of 9th and 10th, listen it very carefully because those who are in the 9th standard, this chapter may be very beneficial for them in the NTSC exam as well as in the preparation of the 10th standard. And the 10th standard, they are recapitulating this chapter. So we are again going to start the resources and development. My dear student, before starting this chapter, I want to tell you that this chapter is divided into three parts. In the very first part, we will discuss about the different types of the resources and the sustainable development. In the second concept of this chapter, we will discuss about the land resources, in which we will discuss about the land degradation, causes of land degradation and measure of the land degradation. Except this, we will also discuss about the land utilization pattern in India and how the land utilization pattern vary from one place to another place in India. And the third concept of this chapter consists of the soil resources. In this part of this chapter, we will discuss about the different types of the soil that is found in India. And except this, the most important concept of this chapter is soil erosion and causes of the soil erosion, types of the soil erosion, and how we can conserve the soil erosion. So mostly this chapter consists of the three parts. So very first we are going to discuss about the first part of it, that is the type of the resources. My dear student, first of all you have to know about the definition of the resources. I think if generally I ask you that what do you mean by resource, most of the student they will say that everything that satisfy our need can be termed as a resource. But you have to give answer according to 10th standard. We have to elaborate this definition. So my dear student, what do you mean by resource? Have a look here. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable, can be termed as a resource. यानी कि कोई भी वस्तु जो आपके एनवायरमेंट में अवेलेबल होती है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इजीली अवेलेबल है, आपके प्रोवाइडेड है, वो प्रदत्त है वो आपको, और उसके अतिरिक्त थ्री कंपोनेंट इसमें आपके आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट इस चीज को बनाते हैं. व्हाट आर दीज थ्री कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज? द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट बाय द वे इट इज प्रोवाइडेड, इट इज अवेलेबल इन योर सराउंडिंग. लेकिन साथ ही साथ आपका रिसोर्स वो कब बनता है? व्हेन इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, कि जब वो आपका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल आपका हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ सब्सटेंस दैट इज अवेलेबल इन योर एनवायरमेंट, but you do not have the appropriate technology how to extract, how to exploit that substance, that thing from the environment. So if you do not have the appropriate technology, at that time you can't say that that is a resource for you. For example, so you have to the appropriate technology for this. Second is economically feasible. Suppose you have a substance in your surrounding, in your environment, you have also the technology, and after the technology you develop that substance or that product or that resource. But after using the technology it may be become expensive. So if it became such types of the expensive that you can't afford that, it is not feasible for you, it is not affordable for you, so that time it is not economically that type, that if you are not affordable it economically, so that type of
substance or product is no can't be termed as a resource for you. For example, I am doing a good job or I am earning my livelihood, but there are a number of things that are available in the market and my pocket not allowed me for this. For example, iPhone. So I am using a simple Android phone at this time, but if my pocket is not allowing me, if I can't afford the price of the iPhone, so at that time iPhone is not a resource for me because I am not able to purchase that. And third thing is the culturally acceptable. Anything that is available in your surrounding, you have the appropriate technology, and economically you can also afford that. But your culture is not accept that thing, so at that time that it can't be termed as a resource. For example, you belong to a community that is the vegetarian, so non-vegetarian product is not culturally acceptable in your community or in your family, so at that time that non-vegetarian product is not a resource for you. So these are the three important things that you have to keep in your mind, that a substance can be termed as a resource when it is technological accessible, economically feasible, and the culturally acceptable. Now, interdependent relationship between nature, technology, and institution. My dear student, as I told you that there are two types of the resources that is found in a particular territory or in a country, that is the human resource and the natural resource. If we do the comparison of the human resources and the natural resources, we always consider that human resources are superior than the natural resources because we are the human being who are using our skill and technology, and we can interact with the nature and extract that substance from the nature or from our environment. So there is the interdependent relationship between nature, technology, and institution, and these are the central figure of these is the human being. Human being सबसे पहले क्या करते हैं? They interact with the nature, their physical environment. When they found any type of the substance, any type of the thing there, they develop the technology for it, and after developing the technology, they adopt the appropriate types of the institution. So our resources, there is the interdependent relationship between our nature, technology, and institution. How? For example, human being, they interact with nature and they found the petroleum product there. So when they found the petroleum product there, so what will be the next task for the human being? The next task is the to develop the technology. Means they have to develop the technology that how to extract the petroleum from the earth crust. So when they develop the technology, they establish the different types of the institution, they develop the different types of the equipments, that by which method we can extract the petroleum from the earth crust. And suppose they get the petroleum from the earth crust, they then refine them in the different product. For example, पेट्रोलियम से आपके बहुत से प्रोडक्ट आपके बनती है, जैसे कि पेट्रोल है आपका, डीजल है आपका, और भी आपके बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके जो है पेट्रोल से बनते हैं. अप्रोक्सीमेटली आपके 500 प्रोडक्ट जो हैं वो आपके पेट्रोलियम से आपके प्रोड्यूस किए जाते हैं. तो उसके लिए हम जो है इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं. तो आपका नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में आपका जो है खास संबंध होता है. और अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग देखें, तो जो आपकी प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि कोई भी वस्तु आपको मिलती है उसको हम रिफाइन करते हैं ताकि उसको हम यूजेबल बना सके. तो हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जो है वो आपकी चलती रहती है, वो आपकी इन्वॉल्व होती है, आपकी नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के बीच में वो आपकी इन्वॉल्व होती है. ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं? दे इंटरेक्ट विद द नेचर through technology and develop the create the different institution to accelerate their economic development. If anybody asks you that the resources, they are the free gift of nature, so of course there are some resources that are the free gift of the nature like the sunlight or air or etc. But as you are aware,
The extraction of the different resources, it involve in the nature, technology and institution, and we need the money for that. So with this point of view, they are not the free gift of the nature. Our next concept is classification of resources. Basically, if we see that the difference between the resources, there are two types of the resources. The very first is the natural resource and second is our human resource. अगर हम natural resource की बात करें, further these are bifurcated in the renewable resource and the non-renewable resource. Our renewable resource further divided into the continuous and the biological. Continuous जैसे कि आपका wind, water, एंड बायोलॉजिकल में आपका नेचुरल वेजिटेशन एंड दी वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो आपके नेचुरल वेजिटेशन, आपके फ्लोरा और वाइल्ड लाइफ आपकी फोना, तो ये आपके जो है बायोलॉजिकल में आपके आते हैं। नॉन रिन्यूएबल में आपके रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल। रिसाइकलेबल में आपकी जो मेटल्स हैं वो आती हैं आपकी, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर आपका, आप दोबारा से उसकी रिसाइकलिंग कर सकते हैं, दोबारा से उसको कोई रूप दे सकते हैं। आयरन है आपका, एल्यूमिनियम आपका, लाइक दिस। और नॉन रिसाइकलेबल में जो आप एक बार यूज कर लेते हैं वो दोबारा से आपके जो है एग्जिस्टेड नहीं रहते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये एक बार अगर आपने यूज कर लिए तो यूज के बाद ये जो आपके खत्म हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपके ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज में आपका जो है वो आपके आते हैं बेटा स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन बीइंग में आपका स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि हम क्या करते हैं, हम जो है ह्यूमन बीइंग की जो है, ह्यूमन बीइंग जो है अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपनी स्किल के थ्रू अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर, अलग अलग प्रकार के इंस्टीट्यूशन को डेवलप करता है। यानी कि अलग अलग जो रिसोर्सेज है उनको एक्सट्रैक्ट करने की विधि, एक्सट्रैक्ट करने के मेथड जो है वो डिफरेंट होते हैं। तो इस प्रकार से ह्यूमन बीइंग जो है अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर जो है अलग अलग स्ट्रक्चर और अलग अलग इंस्टीट्यूशन, इक्विपमेंट्स आपका जो है डेवलप करता है। इसके अतिरिक्त जो आपके ह्यूमन बीइंग है वो आपकी क्वांटिटी और क्वालिटी पे भी चलते हैं। जैसे कि क्वांटिटी मींस हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन ए कंट्री, दैट इज द क्वांटिटी। अगर हम 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग देखें, सो इंडिया कंसिस्ट ऑफ द 121 करोड़ population, consist of the 121 crore population. So that is the quantity of the human resources. Or quality means how many are the skilled person there. Through the education or the different training sessions we develop our human resources like the doctor, engineer, like this. So these are the qualitative. Quantitative में आपकी मात्रा कितना अमाउंट है, कितने पर्सन आपके, क्वालिटेटिव में आपके स्किल पर्सन कितने हैं, वो आपके जो है रिसोर्सेज में आते हैं। This is just a basic classification of the resources. Further, if we have a look on the classification of the resources, our resources are divided into the 4 categories. The very first is the on the base of origin. On the base of the origin, our resources are divided into 2 categories, biotic and abiotic resource. Second is our on the base of the exhaustibility. On the base of the exhaustibility, our resources are divided into the renewable and non-renewable resources. Third is on the basis of ownership. On the basis of ownership, our resources are divided into 4 categories. These are our individual resource, our community resource, national resource and international resource. And last is our on the base of status of development. On the base of status of development, our resources again divided into the 4 categories. These are our potential resource, developed resource, stock resource and reserve resource. Today we are going to discuss about the different types of these resources. Have a look here. The very first is on the base of origin. On the base of origin, our resources are divided in 2 categories, biotic and abiotic resource. Biotic, as its name indicate, obtained from the biosphere or obtained from the living organism, those who have the life. For example, human being, flora and fauna, fisheries, livestock, यानी कि जिनमें जान होती है, जिनमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके होते हैं, उनको हम जो है आपके बायोटिक रिसोर्सेज में लेकर आते हैं। एबायोटिक दैट कंपोज ऑफ द नॉन लिविंग थिंग, जैसे कि रॉक्स हैं बेटा, आपकी मेटल्स है, यानी कि जितनी भी आपकी अजीवित वस्तुएं हैं, नॉन लिविंग थिंग्स है, दे कंसिस्ट ऑफ द
abiotic resources. Next is our on the base of exhaustibility. On the base of exhaustibility, our resources is divided into two categories: renewable resource and non-renewable resource. First of all, renewable resource, as its name indicate, are renewable or replenishable resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical और mechanical processes. यानी कि जिसको आप physical, chemical और mechanical process के थ्रू आप जो है दोबारा से इसको जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जितने भी हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, ऑल आर द रिन्यूएबल रिसोर्स लाइक सोलर एनर्जी, wind energy, nuclear energy, geothermal energy, tidal energy, etc. All these are the renewable resource. Except this, our water, forest, wildlife, they are also the renewable resource. यानी कि जो आपके बायोटिक रिसोर्स हैं वो भी आपके जो हैं renewable resource होते हैं. Renewable resource, as you are aware, it is further divided into two categories. I already told you about the diagram. These are our continuous or the flow resources. In this, wind and water, these are consist of the flow resources. और इसके अतिरिक्त कुछ आपके जो हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज भी आपके होते हैं. बायोलॉजिकल में क्या क्या आते हैं आपके? नेचुरल वेजिटेशन एंड आपका वाइल्ड लाइफ, यानी कि फ्लोरा एंड फोना. तो ये आपके जो है कॉन्टिन्यूस और फ्लो, और दूसरे आपके बायोलॉजिकल रिसोर्सेज. इसके बाद आपकी सेकंड कैटेगरी आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज होते हैं बेटा, वो आपके जो हैं एज इट नेम इंडिकेट, द रिसोर्सेज दैट कैन बी रिन्यूड और रिप्लेनिशेबल थ्रू द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल processes. Suppose if you want to renew these or you want to reform these take a long geological time like million of years. So it is not possible. So such types of the resources are known as the non-renewable resources. In these, our minerals, fossil fuels are consist of. As I told you, some आपके मिनरल जो हैं आपके, यानी कि जो आपकी मेटल्स हैं, इनको हम दो कैटेगरी में आगे डिवाइड कर लेते हैं. नॉन रिन्यूएबल को रिसाइकलेबल एंड द नॉन रिसाइकलेबल. रिसाइकलेबल मींस दैट कैन बी रिसाइकल आफ्टर द यूज लाइक द मेटल्स. एज आई टोल्ड यू, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, our copper, like this. So these are the recyclable resources, and non-recyclable that get exhausted after its use like the fossil fuel like coal, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इनको हम दोबारा से रिन्यू, रिसाइकल नहीं कर सकते हैं. तो इस प्रकार से आपके जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं, कॉन्टिन्यूस और फ्लो, और सेकंड आपका बायोलॉजिकल. और ऐसे ही नॉन रिन्यूएबल भी आपके दो कैटेगरी में आपके डिवाइड किए जाते हैं, रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल. आफ्टर दैट, on the base of ownership, our resources are divided into four categories: individual resource, community owned resource, national resource, international resource. First of all, we are going to discuss about the individual resource. As its name indicate, the resources that are owned by a private individual or a particular individual. For example, I am teaching you this time. Okay, so I am using my own computer. So this is the individual resource for me. You are using your mobile phone. These are the individual resources for you. Your shirt, your house, your car, your bike, your pen, your book, all consist of the individual resource. यानी कि ऐसे resources, ऐसे संसाधन जिस पर एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होता है, उनको हम individual resources कहते हैं. दूसरा आपका रिसोर्सेज होते हैं बेटा कम्युनिटी रिसोर्सेज. कम्युनिटी रिसोर्सेज एज इट नेम इंडिकेट, ऐसे रिसोर्सेज दैट आर एक्सेसिबल बाय द ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी. यानी कि कोई भी एक कम्युनिटी है जो आपके एक विशेष प्रकार के रिसोर्सेज को यूज कर रही है, उनको हम कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स के नाम से जानते हैं. जैसे कि विलेज में आप जाएं, गाँव में अगर आप जाएं, तो जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड है, बरियल ग्राउंड है या विलेज पॉन्ड है, उसको गांव के सारे व्यक्ति यूज करते हैं, तो वो आपका कम्युनिटी रिसोर्स हो गया. ऐसे ही अगर शहरों में आप जाएं, पब्लिक पार्क्स जैसे आपके होते हैं, पिकनिक स्पॉट होती है, प्लेग्राउंड होते हैं,
आपके ये जो है आपके सारे कम्युनिटी रिसोर्स होते हैं। ऐसे ही अगर आप स्कूल को लें तो स्कूल आपका एक कम्युनिटी रिसोर्स है, टेम्पल आपका एक कम्युनिटी रिसोर्स है, थिएटर आपका एक कम्युनिटी रिसोर्स है, मॉल्स आपके एक कम्युनिटी रिसोर्स हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट आपका एक कम्युनिटी रिसोर्स है, यानी कि अलग अलग कम्युनिटी जो है उसको आपका एक्सेस करती है। तो इस प्रकार से कम्युनिटी जो अब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिन रिसोर्सेज को आपका यूज करती है, दे आर कंसिस्ट ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्स। नेक्स्ट इज अवर national resource. As its name indicate, national, if we technically assess technically all the things that come under the category of a particular territory or a nation or a country consist of the national resources. जैसे I am the citizen of India, so I am the national resources of India. You are also the national resources of India. You consist of the human resources of India. ऐसे ही आपके जितने भी आपके रोड्स, कनाल, रेलवेज, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो भी वस्तुएं, रिवर्स, आपके माउंटेन, प्लेट्यूज, जितनी भी वस्तुएं आपकी इंडिया में आती हैं वो सारी की सारी जो है आपके इंडियन नेशनल रिसोर्सेज को कंसिस्ट करती हैं। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है बेटा आपका, द टर्म टेरिटोरियल वाटर रेफर्स टू ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल, दैट इज कंसिस्ट ऑफ दी, अब इसका दायरा घट गया आपका 18.52, यानी कि आपका जो है जब हम समुद्र के द्वारा यात्रा करते हैं तो हम उस यात्रा को, उस नेविगेशन को नॉटिकल माइल में मेजर करते हैं। एक जो नॉटिकल माइल आपका होता है, एक नॉटिकल माइल में आपका 1852 यूनिट्स मीटर्स आपके होते हैं, यानी कि 1.8 किलोमीटर आपका एक नॉटिकल माइल में आता है। तो 1.8 जैसे आपका आता है तो 12 नॉटिकल माइल में आपके जो है 19.2 किलोमीटर आपके बनते हैं, यानी कि जब आप समुद्र में 19.2 किलोमीटर तक जाते हैं तो वो एरिया भी आपका नेशनल रिसोर्सेज एरिया में काउंट किया जाता है। और कंट्री जो है लीगल पावर उसके पास होती है इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, यानी कि अगर आपका कोई प्राइवेट साधन है, जैसे कि आपकी कोई जमीन है, तो उस जमीन को अगर भारतीय सरकार चाहे तो वो आपसे हायर कर सकती है अगर उसका यूज जो है पब्लिक गुड के लिए, यानी कि सभी लोगों के वेलफेयर के लिए होना है। जैसे कि आपने देखा होगा बेटा, आपके पानीपत शहर से जीटी रोड गुजरता है। जीटी रोड को आपने देखा होगा कि धीरे धीरे हम इसको जो है ब्रॉड करते जा रहे हैं, चौड़ा बनाते जा रहे हैं, इसकी विड्थ बढ़ाते जा रहे हैं। तो आसपास के जो किसान थे उनकी जो जमीनें थी वो उसमें हायर की गई हैं। तो इस प्रकार से ये जो कार्य है वो पब्लिक गुड के लिए किया गया, यानी कि सभी लोगों की भलाई के लिए किया गया। यानी कि जब सरकार को ऐसा लगता है कि किसी एक विशेष संसाधन को, किसी एक विशेष रिसोर्सेज को यूज करने से पूरे देश की पब्लिक का भला हो सकता है, तो वो अगर आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है तो गवर्नमेंट उसको हायर कर सकती है। ऐसे ही एक एग्जांपल और आपकी लोकेलिटी में स्टेब्लिश है बेटा, पानीपत रिफाइनरी। पानीपत रिफाइनरी जो आपकी यहाँ पे डेवलप की गई है वो यहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे उनकी जमीन को, उनकी लैंड को एक्वायर करके तब की गई है। तो लैंड एक्वायर जो उनका हुआ है तो वो पब्लिक गुड के लिए आपका हुआ है। तो पब्लिक गुड के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए सरकार जो है किसी भी व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी को ले सकती है। जैसे कि अगर आप अपने ही एरिया को देखें, आप जितने भी व्यक्ति जो हैं सेक्टर 13, 17 और 18 में रह रहे हैं, ये जो आपका जो है ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए यहाँ के किसानों की जो जमीनें थी उसको हायर किया गया है और इसको जो है आपका एक रेजिडेंशियल एरिया में कन्वर्ट किया गया है। तो ये भी आपका जो है एक प्रकार का जो है पब्लिक गुड के लिए कार्य किया गया है। सो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। तो इसके लिए जो है यूडीए, अर्बन डेवलपमेंट जो अथॉरिटी होती है वो सरकार से जो है एम्पावर्ड होती है। सरकार ने उसको अथॉरिटी दे रखी है कि वो अगर पब्लिक गुड के लिए किसी का फायदा होता है तो वो आपकी जो है प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है उसको भी जो है एक्वायर कर सकती है, लेकिन उसको जो है आपको उचित दाम देने होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बेटा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल जो रिसोर्सेज हैं दे आर रेगुलेटेड बाय सर्टेन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। वो आपके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो है आपके जो है रेगुलेट किए जाते हैं। इंटरनेशनल यानी कि जहाँ पे किसी एक विशेष कंट्री का जो है अधिकार नहीं होता, उस पे जो है अलग अलग देशों का अधिकार होता है।
ये जो एरिया आपका आता है, दीज इंक्लूड द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 किलोमीटर ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यानी कि अगर आप समुद्र में से जो है आपका जो है 200 नॉटिकल माइल के आगे आप जाना चाहते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ द ईईसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि समुद्र में आगे जाकर आप जो है 200 नॉटिकल माइल से आगे जाकर आप कोई भी रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, या समुद्र से जो है मिनरल्स को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, या समुद्र में किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल एजेंसी से परमिशन लेनी होती है, विच बिलोंग टू ओपन नेशन। वो आपका ओपन नेशन होता है, और नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दीज विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी इंडिविजुअल कंट्री जो है बिना किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की कंकरेंस परमिशन के बिना उसको जो है हायर नहीं कर सकता है, या उस पर वर्क नहीं कर सकता है। अगर आपने जो है यहाँ पे जाके कोई भी मिनरल को एक्सप्लॉइट करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है, कोई रिसर्च करनी है, तो यू हैव टू गेन दी कंकरेंस, यू हैव टू गेन दी परमिशन ऑफ द डिफरेंट इंटरनेशनल एजेंसीज। तो आपकी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो इंटरनेशनल एजेंसी आपकी बनाई गई है। जैसे कि यूएन का नाम आपने सुना होगा, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन में आपकी बहुत सी संस्थाएं हैं, जैसे कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे वर्ल्ड की हेल्थ की के लिए जो है आपका काम करती है। ऐसे ही आपका यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ऐसे ही आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऐसे ही आपका WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF। ऐसे ही आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ऐसे ही बेटा आपका वर्ल्ड बैंक। ऐसे ही आपका WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही बेटा आपके नाटो, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत से आपके ऐसी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो पूरे वर्ल्ड के लिए कार्य करती है। तो अलग अलग कार्य के लिए हमको अलग अलग इंटरनेशनल एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ती है। So I think you understood this concept about the different types of the resources. In this concept, our last concept is the on the basis of status of development. On the basis of status of development, our resources are further divided into the 4 categories. The very first is potential resource. Our resources found in a region which have not been utilized. यानी कि जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इनकी पोटेंशियल तो होती है, इनकी कैपेसिटी तो आपकी होती है, लेकिन जो है ये रिसोर्सेज जो हैं एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, इनकी पोटेंशियल नहीं होती है, लेकिन हम जो है इनको इनकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर पा रहे हैं, इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि विंड एंड सोलर एनर्जी है बेटा आपकी, जो गुजरात और राजस्थान में आपकी पाई जाती है। हालांकि कुछ हद तक हम विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पोटेंशियल उससे कहीं ज्यादा है। तो उस पूरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम इन दोनों रिसोर्सेज को यूज नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम कुछ हद तक तो इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन इसकी पूरी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं। इस तरह के रिसोर्सेज जो होते हैं वो पोटेंशियल रिसोर्सेज आपके होते हैं। ऐसे ही आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि लद्दाख में आपका यूरेनियम पाया जाता है, यानी कि यूरेनियम को हम प्रॉपर मात्रा में आपका जो है यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो भी आपका एक पोटेंशियल रिसोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि फ्यूचर में हमारे पास जो अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाए और हम इसको यूज करने लगे। दूसरा आपका होता है बेटा डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप रिसोर्सेज वो होते हैं आपके जो ऑलरेडी डेवलप हैं, इनके नाम से ही क्लियर है। हम जानते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दीज रिसोर्सेज एंड व्हाट आर द क्वांटिटीज ऑफ दीज रिसोर्सेज। सो वी आर यूजिंग दिस रिसोर्सेज इन द प्रेजेंट टाइम। हम एट प्रेजेंट टाइम में हम जो है इनको यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोल है बेटा, नेचुरल गैस आपका, पेट्रोलियम है, ये डेवलप रिसोर्सेज है, यानी कि हम इनको डेवलप कर चुके हैं और हम इनको जो है पूरा प्रयोग में ला रहे हैं। तीसरा आपका आता है बेटा स्टॉक। एज इट नेम इंडिकेट, स्टॉक रेफर टू मटेरियल इन द एनवायरनमेंट व्हिच हैव द पोटेंशियल टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज। यानी कि ये कौन से रिसोर्सेज होते हैं बेटा? ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट में अवेलेबल होते हैं। ये ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई भी कर सकते हैं,
लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास आज तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो ये बता सके कि इनको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, इनको यूज कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एज यू आर अवेयर, वाटर इज अ कंपाउंड ऑफ द टू इनफ्लेमेबल गैसेस। दो इनफ्लेमेबल गैसेस से बना है आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, which could be used as a resource of energy if we had the required technical know-how। यानी कि know-how का यहाँ पे मतलब है we do not know the technology। तो अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिससे हम जो है वाटर को एक सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकें, तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। बट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी वी आर नॉट यूजिंग द वाटर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और लास्ट आपका आता है रिजर्व। दे आर द सबसेट ऑफ स्टॉक। ये स्टॉक का ही एक पार्ट है। यहाँ पे हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है। वी नो हाउ, हम जानते हैं कि कैसे इन रिसोर्सेज को यूज करना है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। लेकिन हमने फ्यूचर की रिक्वायरमेंट के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए इनको सुरक्षित करके, रिजर्व करके रख दिया है। जैसे कि रिवर वाटर है बेटा, can be used for generating hydroelectric power, but presently it is being utilized only to limited extent। यानी कि रिवर का जो वाटर है हम उनको एक लिमिटेड एक्सटेंट में यूज कर रहे हैं और ज्यादातर पानी को हम सेव करके रखते हैं। ऐसे ही हमारे फॉरेस्ट है बेटा, फॉरेस्ट को भी हम एक लिमिटेड वे में ही यूज कर रहे हैं, तो वो आपका जो है एक रिजर्व रिसोर्स है। ऐसे ही बेटा यूएसए, जैसे आपने सुना होगा, और अगर आप कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स पढ़ते हैं तो यूएसए के पास जो है ऑयल जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में आपका है, तो वो उसने अपना रिजर्व करके रखा हुआ है। और एट प्रेजेंट टाइम वो जो अपना ऑयल है वो कहाँ से ले रहा है? ईरान, इराक, सऊदी अरब से आपका ले रहा है। वो इसलिए ले रहा है कि ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ से तो अब कंप्लीट होती रहे, और अगर बाय द वे इन फ्यूचर जो है फॉसल फ्यूल की कमी हो जाए तो वो उनके जो रिजर्व है वो उनको यूज कर सकता है। तो हम एक फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमको रिजर्व करके रखते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन in your mind, you can raise hand beta। I think there is no question। Lavanya beta, you are the 10th class student। Lavanya? Yes sir। Okay, yes sir। And Khushi? Khushi is also 10th class student। Sir 9th। 9th class Khushi, which section beta? Khushi, which section beta? Sapphire। Sapphire। Okay beta, okay। How many student of the 9th standard in this? Please raise hand। Raghav, Vichitra, Harsh, उमंग, तनीषा मलिक, संयम, खुशी, नैन्सी। ओके बेटा, ओके। तो बेटा 9th class student, have you understood today concept? Yes बेटा। Yes। Yes। Yes sir। Okay, okay बेटा। Yes sir। Yes sir। Okay बेटा, okay, Yes sir। okay बेटा। Yes sir। So this is enough for today beta, and on next Sunday we will discuss the remain concept of this chapter beta। Thank you beta, have a nice day, God bless you beta। Bye sir। Okay beta, okay।